सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8. पहले क्वेश्चन रीड करते हैं. सी लिमिटेड हैज इनकर्ड हैवी लॉसेस इन द पास्ट फ्यू ईयर्स. फॉलोइंग इज इट्स बैलेंस शीट. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2014. Liability, equity share capital, equity share of rupees 10 each fully paid. Preference share capital 8%, preference share of rupees 10 each. Security premium 9%, debenture interest, sundry creditors, bank overdraft. Total asset side goodwill, freehold property, leasehold property, plant and machinery, furniture, stock, debtors, share issue expenses, profit and loss account total. Note, preference dividend is in arrears for 4 years. There was a contingent liability of rupees 20,000 for workmen compensation fund. The following scheme of reconstruction was approved by the court. The preference share were reduced to rupees 7.50 per share fully paid and equity share to rupees 2 per share fully paid. After deduction, both classes of shares were consolidated into rupees 10 per share. One new equity share of rupees 10 each was issued for every rupees 40 of gross preference dividend in arrears. The balance of security premium was utilized. Plant and machinery was written down to 2,80,000. Furniture was 64,000. Goodwill, share issue expenses, debit balance in profit and loss account, debts of rupees 17,200 and obsolete stock of rupees 20,000 were to be written off. Contingent liability for which no provision had been made was settled at rupees 14,000. However, amount of rupees 12,600 was recovered from insurance company. Debenture holders agreed to forego the principal amount by rupees 30,000 and accrued debenture interest in full. Pass journal entries, prepare capital reduction account and balance sheet in the books of C Limited. Okay, so just draw the columns. Okay, so we will start with point number 1. Okay, now what is written in point number 1? The preference shares were reduced to rupees 7.50 per share fully paid up. The preference shares were reduced to rupees 7.50 fully paid up. Now see, this you have to look in this concept number 3 है ना, वो ओल्ड शेयर को कैंसिल करना है, नए शेयर को इश्यू करना है और जो प्रॉफिट होएगा वो किस में ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिडक्शन में. इज इट क्लियर? ओल्ड शेयर जो कैंसिल करना है उसका फेस वैल्यू कितना है? ऊपर 10. इज इट क्लियर? तो जो शेयर कैंसिल करना है उसका फेस वैल्यू कितना है? 10. तो 10 रुपीज वाला फेस वैल्यू मुझे कैंसिल करना है और कितने वाला इश्यू करना है? 7.50 वाला. राइट, 10 वाला जो कैंसिल करना है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है ना, वो लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट. तो उसको क्या कर देंगे? डेबिट. राइट, और जो नया इश्यू करते हैं वो लायबिलिटी साइड में आता है ना, तो 7.5 वाले को क्या करेंगे? क्रेडिट. राइट, और प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट हो रहा है मतलब कैपिटल रिडक्शन क्या होगा? क्रेडिट. कैपिटल रिडक्शन क्या होगा? क्रेडिट. एंट्री बोलिए. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 rupees, 2 8% preference share capital 7.50 and 2 capital reduction. First write the entry, then we will discuss the amount. First write the entry. 8% preference share capital account debit rupees 10. 2 8% preference share capital rupees 7.50 and 2 capital reduction. 2 capital reduction 1 lakh. 2 capital reduction 1 lakh. Sorry, 2 capital reduction. Now see how to write the amount. Amount कैसे लिखना है अपने को? जो कैंसिल हुआ है उसका अमाउंट हम लोग कहाँ से ले लेंगे? बैलेंस शीट से. कहाँ से लेंगे? बैलेंस शीट से. वी विल टेक इट फ्रॉम द बैलेंस शीट. राइट,
8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, व्हाट इज द वैल्यू 4 लाख, कितना है वैल्यू 4 लाख, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग 4 लाख, इज दैट क्लियर 4 लाख। वंस यू गेट दिस अमाउंट, ये अमाउंट एक अमाउंट अपने को मिल गया तो इसके हेल्प से अपने को बाकी के अमाउंट मिल जाएंगे ना। 4 लाख है, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर 10, 4 लाख डिवाइड बाई 10 कितना होगा 40,000 एंड 40,000 मल्टीप्लाई बाय 7.50 how much 3 lakh, okay, and the difference of this is how much 1 lakh, so 1 lakh profit will go to capital reduction, right? Narration being face value of 8% preference share, being face value of 8% preference share reduced from rupees 10, reduced from rupees 10 to rupees 7.50, reduced from rupees 10 to rupees 7.50. Clear? Entry number 1 is clear to everyone. Shall we proceed further? Again we will refer to the question. Okay, in question we will see, okay, point number 1, it is also talking about equity share. किसके बारे में बात कर रही है equity share में, right? So again equity share also what we have to change face value, what we have to change face value, face value means same concept number 4, okay, we have to cancel the share of 10 rupees and issue new share of what value 2 rupees, okay. ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है, नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है ना, कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा डेबिट, राइट, और ये 2 रुपीज़ वाला इश्यू करेंगे ना तो लायबिलिटी साइड में जाएगा ना, तो उसको क्या करना है क्रेडिट, और जो भी प्रॉफिट आएगा इसके लिए कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा क्रेडिट, कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा क्रेडिट। बोलिए एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में 10 रुपीज़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में 2 रुपीज़ टू कैपिटल रिडक्शन। फर्स्ट राइट द एंट्री, first write the complete entry, then we will find out the amount. Okay, equity share capital debit 10 rupees to equity share capital rupees 2 to capital reduction. Okay, now see how to write the amount. Amount लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले कहाँ पे जाके देखेंगे बैलेंस शीट में, where we will see balance sheet, right? Balance sheet, what is the amount of equity share capital 3 lakh, so just pick up that amount, what is the capital amount 3 lakh, okay. Once this amount is available we can easily find out the remaining amount, right? So 3 lakh divide by 10, 3 lakh divide by 10 that is 30,000 multiply by 2 that is 60,000, that is 60,000, okay. Now here it is 3 lakh and here it is 60,000, so what is the difference 2 lakh 40, so 2 lakh 40 is the profit which will be transferred to capital reduction, which will be transferred to capital reduction. Narration being face value of equity share reduced from rupees 10 to rupees 2, reduced from rupees 10 to rupees 2. Is any doubt? Can I proceed further? Yes, can I proceed? Now again we will refer to the question, right? Point number 1 is I think completed. Now we will talk about point number 2, right? Point number 2 क्या बोल रहा है देखिए, after deduction both the shares, both the classes of shares were to be consolidated into shares of rupees 10, okay. Consolidation means only exchange in the certificate, right? No change in the capital value, no change in the capital value. So first we will consolidate the preference share. सबसे पहले हम लोग किसको कंसोलिडेट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को। ये प्रेफरेंस शेयर 7.50 वाले है ना, इसको कंसोलिडेट करना है, मतलब ये वाले शेयर हम लोग वापस ले लेंगे, राइट। सो हियर इट इज क्रेडिटेड, ये वाली एंट्री में क्रेडिट है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेबिट, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेबिट। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट रुपीज 7.50, रुपीज 7.50, राइट। और इसके बदले में कितने परसेंट वाला, कितना रुपीज़ वाला देना है, 10 रुपीज़ वाला, तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रुपीज 10। फर्स्ट राइट द एंट्री 8% preference share capital account debit rupees 7.50
टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में ₹10। दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। इसको क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन। लोअर फेस वैल्यू का शेयर हायर फेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया ना। ओके, नाउ कमिंग टू द अमाउंट, अमाउंट विल बी सेम। कितना अमाउंट है ये? 3 लाख। दैट सेम अमाउंट विल कम बोथ द साइड, हियर ऑल्सो 3 लाख, हियर ऑल्सो 3 लाख, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन कैपिटल, देयर इज नो चेंज इन capital. Is that clear? Only change in the face value, and because of the face value number of shares will change. Any doubt? Okay, narration being 8% preference share, being 8% preference share of rupees 7.50 each, of rupees 7.50 each, consolidated to rupees 10 each, consolidated to rupees 10 each. Is any doubt? Consolidation is clear. Similarly हम लोग किसका कंसोलिडेशन करेंगे? इक्विटी शेयर का। किसका कंसोलिडेशन करेंगे? इक्विटी शेयर। मतलब ये ₹2 वाला शेयर कैंसिल कर देंगे, राइट, और इसके जगह पे कितने वाला शेयर इश्यू करेंगे? ₹10 वाला। इज दैट क्लियर? अभी कैंसिल करना है ना, तो ये इधर क्रेडिट में है, तो इसको क्या करेंगे? डेबिट। इज दैट क्लियर? और उसके जगह पे कितने वाला शेयर देना है? 10। तो फर्स्ट पास द एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इनटू ब्रैकेट ₹2 into bracket ₹2 to equity share capital, to equity share capital into bracket ₹10। पहले एंट्री लिख लीजिए। देन अमाउंट जो ₹2 वाला शेयर है, व्हाट इज द अमाउंट? 60। सेम 60 यू हैव टू राइट बोथ द साइड, सेम 60 both the side. Narration what? Being equity share of ₹2 each, consolidated to ₹10 each. Being equity share of ₹2 each, consolidated to ₹10 each. Consolidated to ₹10 each. Yes, anybody has any questions? So this completes my point number 2. Point number 2 complete हो गया. Now point 3, one new equity share of ₹10 each was issued for every ₹40 of gross preference dividend in arrears. Okay, now see ये point क्या बोल रहा है? This point is talking about preference dividend in arrears. किसके बारे में बोल रहा है वो? प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स, राइट। तो प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स का पेमेंट देना है। प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स का क्या देना है? पेमेंट देना है, राइट। और किस में देना है? इक्विटी शेयर में। किस में देना है? इक्विटी शेयर में। तो प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स कंटीजेंट लायबिलिटी है ना, तो कंटीजेंट लायबिलिटी पे हो रहा है। पे हो रहा है मतलब लॉस, तो लॉस मतलब कैपिटल रिडक्शन डेबिट, कैपिटल रिडक्शन डेबिट। इज दैट क्लियर? और पेमेंट अपने को इक्विटी शेयर में करना है। पेमेंट किस में करना है? इक्विटी शेयर में। तो एंट्री क्या आएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंट्री क्या आएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले एंट्री लिख लीजिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंट्री लिखे ना सबने? 1 मिनट, आई विल जस्ट शो यू वंस अगेन। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है? नाउ फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट, अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट। व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर? वर्किंग नोट। सो जस्ट गिव द हेडिंग वर्किंग नोट एंड राइट द हेडिंग एज प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स। गिव द हेडिंग वर्किंग नोट and give the heading as preference dividend in arrears. Preference dividend in arrears. Okay. Now see, just pay attention over here. इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है? आई एम जस्ट, मैं क्वेश्चन में रेफर कर रहा हूँ। क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है? देखिए, प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स कितने साल का है? 4 साल का। कितने साल का है?
4 साल का। सो प्रेफरेंस डिविडेंड किस पे दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे। किस पे दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 4 लाख। कितना है? 4 लाख। और परसेंटेज कितना है? 8%। तो 4 लाख इंटू 8%। कहाँ से लिया? क्लियर है ना? ये 4 लाख। सो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 8% और मल्टीप्लाई बाय कितने साल का बाकी है? 4 ईयर्स का। ये 4 मैंने कहाँ से लिया? यहाँ से। इज दैट क्लियर? तो कैसे लिखेंगे हम लोग? प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स कैसे आएगा अपना? 4 लाख और 8%। ये लाइबिलिटी साइड से लिया और ये नीचे ये वाला 4 कहाँ से लिया? नीचे जो फुट नोट दिया है वहाँ से। इज दैट क्लियर? लिख लीजिए इसको, 4 लाख इंटू 8% इंटू 4। 4 लाख इंटू 8% इंटू 4। 4 lakh into 8% into 4. The value is coming 1,28,000. वैल्यू कितना आ रहा है? 1,28,000. ठीक है? नाउ सी अगेन आई विल रेफर टू द क्वेश्चन. यहां तक लिखा सबने? ये 1,28,000 तक हो गया ना? ओके. अभी अगेन वी विल रेफर टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, प्रेफरेंस डिविडेंड को कैसा पे करना है. 1 new equity share of ₹10 each was issued for ₹40 of gross preference dividend in arrear. राइट? मतलब एक इक्विटी शेयर देना है. कितना इक्विटी शेयर देना है? एक इक्विटी शेयर. राइट? कितने रुपए के अगेंस्ट में? 40 रुपए के अगेंस्ट में. कितने रुपए के अगेंस्ट में? 40 रुपया प्रेफरेंस डिविडेंड के अगेंस्ट में कितना इक्विटी शेयर मिलेगा? एक इक्विटी शेयर. कितना इक्विटी शेयर मिलेगा? एक इक्विटी शेयर. राइट? तो इसको वर्किंग नोट में कैसे लिखना है देखिए. हाउ यू विल राइट इन वर्किंग नोट. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर और यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड. इज दैट क्लियर? लेफ्ट साइड में क्या है? इक्विटी शेयर और राइट साइड में क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड. राइट? और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया ना, इक्विटी शेयर कितना देना है बोलिए? एक. ठीक है? कितने डिविडेंड रुपीस के अगेंस्ट में? 40 रुपए के डिविडेंड के अगेंस्ट में कितना इक्विटी शेयर देना है? एक इक्विटी शेयर. ठीक है ना? टोटल डिविडेंड अभी अभी हमने कैलकुलेट किया ना, कितना है टोटल डिविडेंड? 1,28,000. टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 1,28,000. राइट? तो अगर एक शेयर 40 रुपए के अगेंस्ट में देना है तो 1,28,000 के अगेंस्ट में कितना देना पड़ेगा? क्या करेंगे यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क. क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क करके क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई. क्वेश्चन मार्क करके क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 1,28,000 इंटू 1/40. 1,28,000 इंटू 1/40. ठीक है? आपको आंसर मिलेगा 3,200. क्या मिलेगा? 3,200. ये 3,200 क्या हो गया? इक्विटी शेयर. 3,200 क्या हो गया? इक्विटी शेयर. मेरे को वैल्यू चाहिए ना, तो एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है. एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया. तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? 32,000. कितना आया? 32,000. ठीक है? तो वो एंट्री अभी रखा है ना ऐसे ही वैल्यू के लिए. कितना वैल्यू आया? 32. क्लियर है स्टूडेंट्स? कैसे आया? क्लियर है ना सभी को? ओके. एक प्रेफरेंस, एक इक्विटी शेयर देना है कितने रुपीस डिविडेंड के अगेंस्ट में? 40 रुपीस डिविडेंड के अगेंस्ट में. टोटल डिविडेंड हम लोग ने निकाला. राइट? कितना? 1,28,000. तो 1,28,000 के अगेंस्ट में कितना इक्विटी शेयर देना पड़ेगा? इसको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को 3,200 मिलेगा. लेकिन ये इक्विटी शेयर है. क्या है? इक्विटी शेयर. और मेरे को वैल्यू चाहिए ना, तो मैं उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा. इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपीज़. तो आंसर कितना आया? 32. तो आपका वो जो एंट्री है, राइट, वो एंट्री में वैल्यू कितना लिखेंगे? 32,000. और नरेशन में बीइंग 32,000 वैल्यू में लिखेंगे और नरेशन में बीइंग 1 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच. हाँ हाँ हाँ. एंट्री कैपिटल रिडक्शन डेबिट क्यों हो रहा है मालूम है? अपन कंटीजेंट लायबिलिटी पे कर रहे हैं ना, तो कंटीजेंट लायबिलिटी पे करते हैं तो लॉस होता है. कंटीजेंट लायबिलिटी पे करते हैं तो क्या होता है? लॉस होता है. राइट? तो लॉस मतलब ये वाला कंसेप्ट है. देखिए, लॉस हो रहा है ना, तो लॉस मतलब कैपिटल रिडक्शन क्या होगा? डेबिट. ठीक है? अभी क्रेडिट किसको करने का, तो हम लोग कैसे पे कर रहे हैं? इक्विटी शेयर से पे कर रहे हैं ना, तो इसके लिए हम लोग ने क्या लिखा? इक्विटी शेयर कैपिटल. क्या लिखा? इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है? मान लीजिए अगर ये चेक से पे हुआ होता तो हम लोग क्या लिखते थे? टू बैंक. क्या लिखते थे? टू बैंक. ठीक है? एनी डाउट? The concept of preference dividend is clear to everyone. Shall I proceed further? Okay. Next point देखते हैं. चलिए,
द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम वॉज यूटिलाइज्ड, द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम वॉज यूटिलाइज। इज इट क्लियर? अभी देखिए ये सिक्योरिटी प्रीमियम लायबिलिटी साइड में है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या पे है? लायबिलिटी साइड में, राइट? तो लायबिलिटी साइड में सिक्योरिटी प्रीमियम है, उसको यूटिलाइज करना है, मतलब उसको यूज करना है। क्या करना है? यूज करना है। यूज करना है मतलब लायबिलिटी साइड से हटाना है, लायबिलिटी साइड से हटाना है, राइट? अभी आप मुझे बताइए, अगर वो लायबिलिटी साइड से मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को हटाऊंगा, राइट, तो मेरा लायबिलिटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? मेरा लायबिलिटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? फिर से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। हाँ, यूटिलाइज का मतलब हो रहा है कि मुझे वहाँ से बैलेंस शीट से उसको हटा देना है। इज दैट क्लियर? यूटिलाइज का मतलब मेरे को सिक्योरिटी प्रीमियम लायबिलिटी साइड से हटाना है। क्लियर है ना? अगर मैं उसको हटा रहा हूँ लायबिलिटी साइड से, राइट, तो मेरा लायबिलिटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा ना। और लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा ना। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। डेबिट कौन सा लायबिलिटी हटाया मैंने? सिक्योरिटी प्रीमियम। कौन सा लायबिलिटी हटाया? सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है ना? क्लियर है? एंट्री बोलिए अभी। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, एंट्री लिखिए पहले, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अरे ये कंसेप्ट वाला वो समझ में आ रहा है ना सबको? वो बिल्कुल केजी के बच्चे लोग के लिए बनाया हूं मैंने। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ओके, अमाउंट यू टेक इट फ्रॉम द क्वेश्चन। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 10,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम? 10,000। नरेशन being balance of security premium account utilized, being balance of security premium account utilized. Yes, any doubt? Shall we proceed further? हाँ, done. चलिए, let us read the next point. Next point. Now see, plant and machinery was written down to 2,80,000. Plant and machinery was written down to 2,80,000. Now हम लोग रेफर करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस शीट में वैल्यू कितना है? 3,20,000। बैलेंस शीट में वैल्यू कितना है? 3,20,000। ओके, और उसका नया वैल्यू कितना हो गया? 2,80,000। नया वैल्यू कितना हो गया? 2,80,000। हम लोग कंसेप्ट में जाके देखते हैं, एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बोलिए, एसेट का वैल्यू, ये एसेट है ना मेरा, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है ना, तो प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस मतलब कैपिटल रिडक्शन डेबिट। क्लियर है? क्या एंट्री आएगा बोलिए? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। लिखिए, एंट्री लिखिए पहले, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। being value of plant and machinery reduced, being value of plant and machinery reduced, being value of plant and machinery reduced. अरे तुम लोग बात मत करो, तुम लोग का आवाज़ रिकॉर्ड होता है उसमें। कल एडिट करके डाला हूँ, फिर मैंने पूरा आवाज़ मेरे को निकालना पड़ा। चलिए, शैल वी प्रोसीड? नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। ओके, अभी सी ईयर एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक्चुअली ये स्टेटमेंट है, फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 64,000। फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर
64,000, ठीक है ना। पूरा स्टेटमेंट क्या है, फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 64,000, क्लियर है ना। तो अभी आप अपने आप को कंपनी समझिए, आप अगर फर्नीचर को बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, राइट, आपके पास पैसा आएगा ना। और नॉर्मली कंपनी में चेक से पैसा आता है, किससे पैसा आता है, चेक से। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। और आपके पास से फर्नीचर बाहर जाएगा तो फर्नीचर को क्या करेंगे, क्रेडिट, फर्नीचर को क्या करेंगे, क्रेडिट। अभी एक मिनट देख लेने का कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, राइट। 80,000 का फर्नीचर है ना, बिक रहा कितने में है, 64 में, बिक रहा कितने में है, 64 में, तो लॉस हो रहा है ना। तो एंट्री क्या लिखेंगे बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। पहले एंट्री लिख लीजिए फिर अमाउंट देखेंगे। अरे अभी कीवर्ड याद है, वो पिक्चर याद रहेगा ना, लॉस का पिक्चर क्या है बोलिए, एलसीडी, और प्रॉफिट का, हाँ, पीसीसी। पहले एंट्री लिखिए बाद में अमाउंट लिखेंगे। बीइंग फर्नीचर सोल्ड एट लॉस। अभी देखिए अमाउंट कैसे लिखना है, एंट्री लिखे ना सबने। फर्नीचर बिका कितने में है, 64 में, देखिए यहाँ पे दिया ना 64, तो बैंक में लिखने का 64, कितना लिखने का, 64, ठीक है, बैंक पहले लिख दो। फिर एक्चुअल फर्नीचर का वैल्यू कितना है, 80, कितना है, 80। कहाँ से मिला ये 80, बैलेंस शीट के एसेट साइड में से, राइट। तो एक्चुअल वैल्यू फर्नीचर का 80 लिख दो, ठीक है। तो 80 वाला अगर 64 में बिका है तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 16,000। सो दैट मीन्स 16,000 इज द लॉस, 16,000 इज द लॉस। बीइंग फर्नीचर सोल्ड एट लॉस, ठीक है ना। चलिए शैल वी प्रोसीड फर्दर, ओके। नेक्स्ट वन क्या बोल रहे हैं देखिए, गुडविल, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेब्ट्स ऑफ ₹17,200 एंड ऑब्सोलीट स्टॉक ऑफ ₹20,000 आर टू बी रिटर्न ऑफ, ओके। मतलब ये क्या क्या बोल रहा है देखिए, गुडविल, राइट, गुडविल पूरा हटा देना है, राइट, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा हटा देना है, डेटर्स में से भी कुछ पैसा हटाना है और स्टॉक में से भी कुछ पैसा हटाना है। इज इट क्लियर। तो ये अपना कंसेप्ट नंबर 2 में, कंसेप्ट नंबर 2 में क्या होगा बोलिए, मुझे बोलिए, एसेट बढ़ेगा कि कम होएगा, एसेट कम होएगा ना। तो एसेट कम होगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा ना। तो लॉस का आपको याद है ना, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, हर एक, गुडविल को हटाना है, टू गुडविल, शेयर इश्यू एक्सपेंस को हटाना है, टू शेयर इश्यू एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हटाना है, टू प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। और फिर डेटर्स और स्टॉक को भी कम करने बोला है, डेटर्स और स्टॉक को भी क्या बोला है, कम करने बोला है। देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन, आपको कैपिटल रिडक्शन डेबिट तो मिल गया, राइट। क्रेडिट किसको किसको करना है यहाँ से देख लीजिए, गुडविल को क्रेडिट करना है, शेयर इश्यू एक्सपेंस को क्रेडिट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करना है, डेटर्स को क्रेडिट करना है और स्टॉक को क्रेडिट करना है, ठीक है। पहले एंट्री लिख लीजिए फिर हम लोग अमाउंट के बारे में डिस्कशन करेंगे कैसे लिखना है, ओके। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट एंड टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। एंट्री लिखिए सभी लोगों ने, खाली एंट्री लिखना, अमाउंट मत लिखना, ओके। अमाउंट हम लोग देखेंगे कैसे लिखना है, लिखे ना एंट्री, ओके। अभी कैपिटल रिडक्शन डेबिट का अमाउंट लास्ट में मिलेगा। सबसे पहले क्या लिखना है, गुडविल, क्या लिखना है, गुडविल। गुडविल का अमाउंट कहां से मिलेगा, बैलेंस शीट में से, कहां से मिलेगा, बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट में जितना गुडविल है पूरा लिखना है, कितना है, 1,10,000, कितना है, 1,10,000। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, 1,10,000, गुडविल 1,10,000,
ठीक है ना। इसी तरीके से शेयर इश्यू एक्सपेंस भी कहाँ से मिलेगा, एसेट में से, राइट। बताइए मेरे को एसेट में कितना है, 5000, लिख दीजिए पूरा 5000, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहां से मिलेगा, बैलेंस शीट से। बताइए कितना है बैलेंस शीट में, 1,38,400, लिख दीजिए 1,38,400, ठीक है ना। नाउ अभी अपने को किसका अमाउंट लिखना है, डेटर्स का और स्टॉक का। किसका लिखना है, डेटर्स का। तो डेटर्स का और स्टॉक का बैलेंस शीट में से मत लिखिए, क्योंकि पूरा उसको नहीं राइट ऑफ करना है। डेटर्स सिर्फ कितना राइट ऑफ करना है, 17,200, 17,200। तो डेटर्स का अमाउंट कितना लिखेंगे, 17,200, ठीक है। और स्टॉक कितना राइट ऑफ करना है, 20,000। स्टॉक कितना राइट ऑफ करना है, 20,000। तो स्टॉक का अमाउंट कितना लिखेंगे, 20,000। स्टॉक का अमाउंट कितना लिखेंगे, 20,000। और ये सब का जो टोटल आता है वो कितना आता है, 2,90,600, 2,90,600, ठीक है। 2,90,600। Yes, narration being intangible and fictitious asset written off, या ये वाला रिटर्न हटा देते हैं। being intangible and fictitious asset, comma debtors, comma obsolete stock written off, comma obsolete stock written off। अरे मुस्कान की अभी एंट्री से दोस्ती हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है ना। आपका देखा मैंने पेपर, ओके था। चलिए शैल वी प्रोसीड फर्दर, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाउ सी, नेक्स्ट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट कंटीजेंट लायबिलिटी। किसके बारे में बोल रहा है वो, कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में, राइट। सी कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है ना। सो कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर विच नो प्रोविजन हैज बीन मेड वॉज सेटल्ड एट ₹14,000। इज दैट क्लियर। मतलब कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए हम लोग ने कोई प्रोविजन रखा नहीं था, राइट। और अपने को वो पे करना पड़ रहा है, कंटीजेंट लायबिलिटी को क्या करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है। तो कंटीजेंट लायबिलिटी पे करने पड़ेंगे तो लॉस होगा, लॉस होगा ना। लॉस होगा तो अपना कंसेप्ट नंबर वन लॉस होगा तो बोलिए कैपिटल रिडक्शन डेबिट, कैपिटल रिडक्शन डेबिट। और पैसा देना पड़ेगा ना, तो टू बैंक, क्या आएगा, टू बैंक। इसका फर्स्ट पार्ट का एंट्री लिख लीजिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना वैल्यू है, 14,000। कितना वैल्यू है, 14,000। व्हाट इज द वैल्यू, 14,000, ठीक है। नरेशन, हाँ एक मिनट। बीइंग कंटीजेंट लायबिलिटी पेड, बीइंग कंटीजेंट लायबिलिटी पेड, ठीक है ना। चलिए अभी उसी पॉइंट में देखिए आगे क्या बोला है कि ठीक है स्टार्टिंग में तो आपने 14,000 रुपया तो भर दिया, राइट। लेकिन आपने इंश्योरेंस निकाल के रखा था। क्या निकाल के रखा था, इंश्योरेंस, राइट। तो क्या हो गया, इंश्योरेंस वाले ने आपको 12,600 वापस कर दिया, 12,600 वापस कर दिया। अरे मेडिक्लेम निकालते हम लोग, क्लियर है ना। पहले हम भर देते ना, लेकिन बाद में वापस मिल जाता है। तो जब भरते तभी एक्सपेंस था ना, तो अभी वापस मिल रहा है मतलब इनकम होगा, वापस मिल रहा है मतलब इनकम होगा ना। कंसेप्ट नंबर वन इनकम है ना। कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करेंगे और वापस मतलब क्या वापस मिलेगा, पैसा, यानी बैंक। बोलिए एंट्री, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 12,600 मिला ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। नरेशन being part of contingent liability, being part of contingent liability recovered from insurance company,
being part of contingent liability recovered from insurance company. ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 9. पॉइंट नंबर 9, डिबेंचर होल्डर्स एग्री टू फॉरगो प्रिंसिपल अमाउंट बाय 30,000 एंड एक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट इन फुल. राइट, मतलब डिबेंचर होल्डर जो है ना, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से 30,000 रुपया माफ कर रहा है. राइट, और जो इंटरेस्ट है वो पूरा माफ कर रहा है. इंटरेस्ट है वो पूरा माफ कर रहा है. राइट, तो हम लोग एक काम करते हैं, सेपरेट एंट्री पास करेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं आए. राइट, तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर पैसा माफ कर रहा है ना, तो ये अपने कंसेप्ट में जाते हैं. मुझे बताइए लायबिलिटी बढ़ेगा कि कम होएगा? कम होगा ना, लायबिलिटी कम होगा ना, और लायबिलिटी कम होगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट है ना. कैपिटल रिडक्शन क्या करेंगे? क्रेडिट. कैपिटल रिडक्शन क्या करेंगे? क्रेडिट. और डेबिट किसको करेंगे? डिबेंचर को. डेबिट किसको करेंगे? डिबेंचर को. कितना परसेंट वाला डिबेंचर है ये? 9%. तो इसका एंट्री आएगा 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. 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 ओके, और अमाउंट कितना आएगा? 30. कितना आएगा? 30. बाई बोला है ना. अरे अपना लॉजिक याद है ना, बाई के साथ बार्गेनिंग नहीं होता. राइट, बीइंग अमाउंट सेक्रीफाइस बाय डिबेंचर होल्डर. बीइंग अमाउंट सेक्रीफाइस बाय डिबेंचर होल्डर. ठीक है, अभी इसमें दो पार्ट है, ये लिखा ना, बीइंग अमाउंट सेक्रीफाइस बाय डिबेंचर होल्डर. राइट, अभी सेकेंड पार्ट आते हैं. सेकेंड पार्ट में उसने क्या बोला है कि इंटरेस्ट भी वो सेक्रीफाइस कर रहा है. इज दैट क्लियर? इंटरेस्ट भी क्या कर रहा है? वो सेक्रीफाइस कर रहा है. इंटरेस्ट भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है ना. कहाँ पे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ना, डिबेंचर इंटरेस्ट. ठीक है, सेक्रीफाइस कर रहा है. तो अपना कंसेप्ट नंबर 2 देखेंगे. बताइए मुझे लायबिलिटी क्या होगा? पहले बढ़ेगा कि कम होगा? पहले ये बोलिए. कम होगा ना. लायबिलिटी कम होगा तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट. डेबिट किसको करेंगे? बोलिए. डिबेंचर इंटरेस्ट को. किसको करेंगे? बोलिए एंट्री. डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. ठीक है, अमाउंट बैलेंस शीट से ले लेंगे. कितना था बोलिए? 5,400. नरेशन बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट sacrificed by debenture holders. Being debenture interest sacrificed by debenture holders. क्लियर है? यहां तक सारे पॉइंट कवर हो गए. क्या बनाया गया अभी? कैपिटल रिडक्शन. कैपिटल रिडक्शन. एक मिनट, डिबेंचर इंटरेस्ट का अमाउंट 5,400 ही है ना? हाँ ठीक है.
लास्ट में एक एंट्री आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।